पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान फिर से नंगल डैम पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने बीबीएमबी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पानी पर तकरार, नंगल में हाहाकार। मुख्यमंत्री मान ने फिर जताया विरोध। सीएम मान ने बीबीएमबी को फिर घेरा। अधिकारी डाल रहे पानी पर डाका। धक्के बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद अब भी जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर नंगल स्थित भाखड़ा डैम का दौरा किया, जहां उन्होंने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने का विरोध किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मान ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी के अधिकारी रोजाना पंजाब के पानी पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको वो कामयाब नहीं होने देंगे। विरोधी हो गए कि पंजाब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਤੜਕੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਲੋਹੰਡ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 4500 ਕਿਊਸੈਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 तरीक वाला फैसला लागू कर दो। उस तक एडवाइस है ही नहीं, अपना ऑर्डर है ही नहीं, किमें लागू कर दी? क्योंकि जो ऑर्डर ही है नहीं की लागू कर दी ऐसी। पानी को लेकर हरियाणा सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि 8 दिन में हरियाणा इस पानी से कौन सी खेती कर लेगा, जबकि पंजाब उनकी जरूरत के मुताबिक पीने का पानी छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अवैध रूप से पंजाब का पानी लेने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो बॉर्डर पर हालत खराब है, दूसरी तरफ पंजाब को अपना पानी बचाने के लिए दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। संकट की इस घड़ी में बीजेपी राजनीति कर रही है। कित्थे सी आर्डर दिखाओ, हाई कोर्ट ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪ ਸਿਨਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ गई, तो ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ बीजेपी ਤੇ बीबीएमबी होगी। सीएम मान ने रंजीत सागर और शाहपुर कंडी डैम पर ड्रोन दिखाई देने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के बांध पहले ही निशाने पर हैं और ऐसे हालात में स्थानीय लोगों को अपना पानी बचाने के लिए नंगल डैम पर जुटना पड़ रहा है। सीएम मान ने सवाल उठाया कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार बीबीएमबी और बीजेपी होगी। कर लो पछाण, हो बैठे ने। ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿਓ। ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਮੌਬ ਹੈ, ਭੀੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਉਹ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ? ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋर्ट है जो है मेरे ते पा दो, ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ मैं सजा तो पाऊंगा। नंगल दौरे को लेकर सीएम मान ने बताया कि वे यहाँ तीसरी बार आए हैं। उनके साथ कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैस भी मौजूद रहे। सीएम मान ने बीबीएमबी को घेरते हुए कहा कि बोर्ड के अध्यक्ष और फिर अधिकारी रोजाना सुबह उठकर पानी छोड़ने के लिए आ जाते हैं। राजस्थान को बॉर्डर पर तैनात सेना के लिए पानी की जरूरत थी और पंजाब सरकार ने फौरन राजस्थान को पानी छोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि देश सेवा में पंजाब हमेशा हाजिर है, लेकिन इस तरह के धक्के बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ।
ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ 5500 ਕਿਊਸਕ, 5000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਗੇ, 500 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, पर आ चीज गलत है ਜਿਹੜੀ ਇਹ इलीगली लेके जा रहे हैं। इस दौरान सीएम मान ने किसान यूनियन पर भी हमला बोला और कहा कि रोजाना हाईवे जाम करने वाले किसान नेता अब कहां हैं? पानी के मुद्दे पर वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भविष्य में पानी के मुद्दे को लेकर वे किस मुंह से उनके पास आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के राजभवन में सर्वधर्म और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मान ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री मान ने पंजाब के लिए स्पेशल पैकेज की मांग करते हुए कहा कि पंजाब हर हालात में मजबूती से डटकर खड़ा है। पंजाब के राजभवन में सर्वधर्म बैठक बुलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में मुख्यमंत्री मान ने धार्मिक नेताओं से अपील की कि वो संकट की घड़ी में सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे और शांति के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए दूत के रूप में काम करें। जो स्पेशल पैकेज, जैसे जम्मू कश्मीर को पैकेज मिलता, हिमाचल को एक पैकेज मिलता, पंजाब को, देखो लड़ाई तो हम देश की लड़ रहे हैं, लड़ाई तो ये देश की है, चाहे वो कारगिल की जंग हो, चाहे वो पठानकोट का हमला हो, दीनानगर का, वो आते तो देश पर अटैक करने के लिए, लेकिन पंजाब रोक लेता उनको। तो पंजाब देश की लड़ाई लड़ता है, कोई स्पेशल पैकेज हमें ऐसा दिया जाए। देखो हिडन लॉसेस पता नहीं कौन कौन से होंगे, अभी पता चलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री वाले भी थोड़ा डरे होंगे कि यहाँ ड्रोन आते हैं, यहाँ तो ये उनका विश्वास बहाल करना पड़ेगा। जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इतना अप हो गया था एक घटना से, वो एकदम से सारा मतलब जीरो पे आ गया। राजभवन में आयोजित इस सर्वधर्म बैठक में मुख्यमंत्री मान ने आगे कहा कि पंजाब की धरती बहुत ही उपजाऊ है, जिस पर कुछ भी उग सकता है, पर नफरत और बैर के बीज नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों और पीर पैगंबरों की पवित्र धरती है, जिन्होंने हमें आपसी प्यार और सहिष्णुता का रास्ता दिखाया है। राजभवन में ही सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री मान ने पंजाब को स्पेशल पैकेज और भारी टैक्स से राहत देने के मामले को जोरदार ढंग से रखते हुए कहा कि हमेशा सीमा पार से जंग के जख्मों को सबसे पहले अपने सीने पर झेलने वाला पंजाब जायज मांगों का हकदार है। जो स्पेशल पैकेज, जैसे जम्मू कश्मीर को पैकेज मिलता, हिमाचल को एक पैकेज मिलता, पंजाब को, देखो लड़ाई तो हम देश की लड़ रहे हैं, लड़ाई तो ये देश की है, चाहे वो कारगिल की जंग हो, चाहे वो पठानकोट का हमला हो, दीनानगर का, वो आते तो देश पर अटैक करने के लिए, लेकिन पंजाब रोक लेता उनको। तो पंजाब देश की लड़ाई लड़ता है, कोई स्पेशल पैकेज हमें ऐसा दिया जाए। देखो हिडन लॉसेस पता नहीं कौन कौन से होंगे, अभी पता चलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री वाले भी थोड़ा डरे होंगे कि यहाँ ड्रोन आते हैं, यहाँ तो ये उनका विश्वास बहाल करना पड़ेगा। जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इतना अप हो गया था एक घटना से, वो एकदम से सारा मतलब जीरो पे आ गया। मतलब दोबारा विश्वास बहाल होने में टाइम लगता है, लेकिन पंजाब हमेशा बहुत बार गिरा भी है, लेकिन पंजाब बहुत बार उतनी बार उठा भी है। तो पंजाब जो है वो चढ़ती कला और सरबत का भला मांगने वाला स्टेट है। पंजाबी हमेशा फ्रंट पे रहेंगे, और पूरी दुनिया में जब जाते हैं हमारे सिंगर्स भी, तो जब कुछ वो तो है कि पंजाबी आगे हुए, तो पंजाबी जहाँ भी चले जाते हैं निशान बढ़ाते हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में अपने विचार रखते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि चाहे युद्ध हो या कोई और मुश्किल घड़ी, पंजाब और पंजाबी हमेशा सबसे आगे रहते हैं। युद्ध जैसे तनावपूर्ण माहौल में भी हमेशा पंजाब को ही नुकसान उठाना पड़ता है, इसीलिए राज्य को इस अमूल्य योगदान के लिए विशेष तवज्जो मिलनी चाहिए। राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए जब कुछ आता है तो पंजाब एकदम से चट्टान की तरह, हिमालय है, एक पंजाब है, हिमालय के बराबरी है, हम भी हिमालय की तरह ही देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। और आप सबका भी धन्यवाद। और थोड़ा सा आपके बारे में भी
एक विचार आए थे कि मतलब पैनिक क्रिएट ना करें, ऐसी खबरें जो सरकार को फिर बाद में ये बताना पड़ता है ये फेक है, ये सच है ना, तो ऐसा पैनिक क्रिएट ना किया जाए। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने आगे ये भी कहा कि एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब किसी भी तरह की अप्रिय घटना का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बॉर्डर पर जो हमारी स्ट्रेंथन करना मिलिट्री को, चाहे वो सेकंड लाइन डिफेंस में पंजाब पुलिस हो, फर्स्ट में आर्मी हो, हम वो जारी रखेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम भी आपको बताना चाहते हैं कि सेंटर को कल हमने भेजा था, वो अप्रूव होके आ गया है उनकी तरफ से, तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगेंगे। हम कोई अपनी तैयारी में या जो इन 10-15 दिन में पंजाब ने सीखा उसको आगे बढ़ाएंगे। देश की रक्षा के लिए हमेशा पंजाब लीड करता रहा, चाहे आज़ादी की जंग हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी वो भी एक युद्ध की तरह पंजाबियों ने उसको लिया और हरी क्रांति ला के 70% फुटबॉल में दिया। आज भी 40% से ज्यादा फुटबॉल में पंजाब दे रहा। पंजाब पुलिस के सम्मान में सीएम मान ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पंजाब पुलिस दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में काम कर रही है। पंजाब पुलिस को आधुनिक उपकरणों से और अपग्रेड किया जाएगा ताकि ये किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली के सेक्टर 78 के फायर स्टेशन में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के फायर स्टेशंस को आपदा प्रबंधन उपकरण और अग्निशमन यंत्र सौंपे। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में तनाव के चलते किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 47 करोड़ रुपए की लागत वाले अग्निशमन यंत्र और उपकरण काम करेंगे और जनता की सुरक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दी बड़ी सौगात। मोहाली में 47 करोड़ के अग्निशमन यंत्र, संवेदनशील इलाकों में लगाए जाएंगे यंत्र, सीमावर्ती इलाकों में करेंगे लोगों की रक्षा, राहत बचाव कार्यों में मददगार साबित होंगे। हर चुनौती से निपटने के लिए सरकार तैयार, सीमा पर सुरक्षा के लिए मान सरकार प्रतिबद्ध। सीमावर्ती इलाकों पर तनावपूर्ण हालातों के चलते किसी भी अप्रिय घटना से निपटने की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए मोहाली में 47 करोड़ रुपए की लागत वाले अग्निशमन यंत्र उपकरण राज्य के लोगों को समर्पित किए। बहुत सारे फायर नाल रिलेटेड लेटेस्ट ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के साथ साथ सीमाओं पर पैदा हो रहे तनाव के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे और मध्यम फायर टेंडर, अग्निशमन या फिर इमरजेंसी व्हीकल और बाकी जरूरी मशीनरी समेत 47 करोड़ रुपए के अग्निशमन यंत्र पंजाब के लोगों को समर्पित किए हैं। एक गैस डिटेक्टर है, 6 ਲਏ ਨੇ, 6 ਗੈਸ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਧੂਆਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨੰਗਲ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ
राजस्थान से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ਨੂੰ ही दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि इनमें अग्निशमन यंत्र में क्या क्या, डिजास्टर डिप्लॉयमेंट किट, हाइड्रोलिक कॉम्बी टूल, कोलैप्स स्ट्रक्चर एंड रेस्क्यू किट, CSSR किट, गैस डिटेक्टर, फायर एंट्री सूट, बैटरी बैकअप लाइटिंग टावर, क्विक रिस्पांस व्हीकल। बाकी उपकरण शामिल हैं, यानी कि पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। बेनती यही करते हैं कि बिल्कुल घबराना नहीं, अफवाहां च नहीं आना। मिलिट्री ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ हर 2-2 घंटे बाद अपडेट भी ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿलिट्री ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ। ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਟਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि ये उपकरण पठानकोट, राजा झांसी, फिरोजपुर और बाकी संवेदनशील स्थानों पर तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के चलते सीमा पर पैदा होने वाली किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने में मददगार होगी। सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार सीमावर्ती निवासियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ਪੰਜਾਬ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਓ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ फ्रंट ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵੀ फ्रंट ਤੇ ਲੀਡ ਕਰੂਗਾ। मुख्यमंत्री मान ने उम्मीद जताई है कि ये सभी अग्निशमन यंत्र संकट के समय राहत और बचाव कार्यों में अधिक मददगार साबित होंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वर्तमान समय में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में सशस्त्र सेनाओं की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने जानकारी दी है कि 30 मई तक 13,000 ग्रामीण सड़कों के टेंडर लगा दिए जाएंगे, तो वहीं 15 जून तक सभी 18,900 किलोमीटर सड़कों के टेंडर जारी हो जाएंगे। साथ ही सौंद ने बताया कि पिछली सरकारों के समय सड़कों को बनाने और फिर रिपेयर में भ्रष्टाचार कैसे होता रहा है। पंजाब की आप सरकार, विकास की तेज रफ्तार, भ्रष्टाचार पर किया प्रहार, सड़कें बन रही शानदार, जियो ट्रैकिंग का जाल, ठेकेदार नहीं होंगे मालामाल, मान सरकार का प्रयास, सड़क व्यवस्था होगी खास। पंजाब की भगवंत मान सरकार नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए नई योजनाएं लेकर आई है, जिसके तहत पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने 18,900 किलोमीटर सड़कें बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में 828 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों की जियो ट्रैकिंग होगी। समय समय पर निर्माण कार्यों के फोटो ठेकेदार अपलोड करेंगे, जिसे विभाग की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। गांव की पंचायत के नो ऑब्जेक्शन के बाद ही ठेकेदार को पेमेंट जारी की जाएगी। हरी झंडी देती कि अज तो 828 किलोमीटर, मैं नोट करियो जी, 828 किलोमीटर का ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, SBS ਨਗਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਦੌੜ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜੈਤੋ ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ, ਬੰਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੋਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 828 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 30 मई तक 12,500 ग्रामीण सड़कों के टेंडर लगा दिए जाएंगे। वहीं 15 जून तक सभी 18,900 किलोमीटर सड़कों के टेंडर जारी हो जाएंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਮਈ ਹੈ, 30 ਮਈ ਤੱਕ 12,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, 30 ਮਈ ਤੱਕ 12,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਦਾ ਹੈ, 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 18,900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। तो सोन ने ये भी बताया कि पिछली सरकारों के समय सड़कों को बनाने और फिर से रिपेयर में भ्रष्टाचार होता रहा। पहले सड़कें बनाने के काम में खेल चलता रहा और फिर उसके बाद रिपेयर के काम में भी धांधली होती रही। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਲੌ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਪਊ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੜਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਤਾ ਤੇ ਸੀਗਾ। पंजाब सरकार ने फिलहाल इस पर रोक लगाने के लिए अहम फैसला लिया है। अब ठेकेदार को 5 साल के लिए संबंधित सड़क के रखरखाव का काम भी करना होगा, जबकि पहले रखरखाव का काम सिर्फ 1 साल के लिए करना होता था। ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਕ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਥੋੜ੍ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਮਖਾ 2-2 ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਟ ਲੀਸਟ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖੈਰ ਖਵਾਹ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਕੂਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। इसके आगे कैबिनेट मंत्री सोन ने ये भी बताया कि नगर पंचायत सड़कों के काम से संतुष्ट नहीं होगी तो वो सरकार के पास शिकायत कर सकेगी। जांच के बाद सरकार की तरफ से टेंडर रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਨੋਰਮਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ मतलब कि सड़कों के विच कोई किसी किस्म की हेराफेरी ना कर सके। सड़कों का ये जाल गांव से गुजरेगा तो किसानों को भी मंडियों तक अपनी फसल और उत्पाद के ले जाने में आसानी होगी। ये सड़कें गांव से शहर और शहर को जिलों से जोड़ेगी।
और प्रदेश की गति में भी सहायक साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि राज्य के कराधान विभाग के जांच विंगों ने 1549 करोड़ रुपए के बोगस बिलिंग या कागजी लेन देन का पता लगाया है और चालू वित्त वर्ष में 108.79 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी दावों को सफलतापूर्वक ब्लॉक कर दिया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार करप्शन पर वार। 1549 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन जब्त। बड़े फर्मों पर मान सरकार ने लिया एक्शन। वित्त विभाग की कार्रवाई से बढ़ी हलचल। बिल लाओ इनाम पाओ से बने मालामाल। पंजाब सरकार में वित्त मंत्रालय संभाल रहे हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वित्त मंत्री ने राज्य के कराधान विभाग द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि विभाग ने 1549 करोड़ के फर्जी लेन देन पकड़े। लुधियाना में सोने के लेन देन में 900 करोड़ रुपए की नकली चालानों का भंडाफोड़ करके 21 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी ब्लॉक कर दिया गया। मोहाली, खरड़ और कोट कपूरा में कोयला लेन देन में 226 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी वाले चालानों का पता चलने के बाद 12 करोड़ रुपए का आईटीसी ब्लॉक किया गया। आगे की प्रवर्तन कार्रवाइयों के चलते लुधियाना और मंडी गोविंदगढ़ में कुल 423 करोड़ रुपए के बोगस लेन देन का पर्दाफाश करके 75.79 करोड़ रुपए का आईटीसी ब्लॉक किया गया। एक और बड़ी जब्ती में अधिकारियों ने रांची से लुधियाना जा रहे एक वाहन को रोका, जिसमें बिना चालान के 2 किलो सोना था और इस मामले की जांच वर्तमान में जारी है। गोल्ड वेस्ट ਦੇ ਉੱਤੇ सोने ਦੇ आधार ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਉਹ 226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਈਟੀਸੀ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ। 586 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਫੇਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵॉइस ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਈਟੀਸੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 2 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਗਾ, 2 ਕਿਲੋ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਬਿਲਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। इन प्रवर्तन कार्रवाइयों की अहमियत पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने ऐतिहासिक राज्यव्यापी अभियान पर भी प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत किन किन फर्मों पर कार्रवाई हुई। 195 जीएसटी पंजीकृत फर्म, जिनमें 156 केंद्र पंजीकृत फर्म और 39 राज्य पंजीकृत फर्म शामिल है, का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 423 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी वाले कागजी लेन देन का पता चला और 75.79 करोड़ रुपए का आईटीसी ब्लॉक किया गया। ज्यादातर शामिल फर्म लुधियाना 100 फर्म और मंडी गोविंदगढ़ 72 फर्म में स्थित थी। फेक इनवॉइस ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ और फिर फेक आईटीसी क्रिएट करके पंजाब सरकार ਦਾ पैसा, सेंटर सरकार ਦਾ पैसा ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੇਕ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ और लगभग 195 फर्मां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ और ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ लगभग 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਲੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, फर्जी तौर पे क्लेम कर रही ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ भी ब्लॉक किया गया। मेरा बिल से जीते ना। अब तक 4,880 उपभोक्ताओं ने मेरा बिल ऐप पर अपने खरीद बिल अपलोड करके सामूहिक रूप से तकरीबन 2,89,15,295 रुपए जीते।
इस बीच जीएसटी अधिनियमों के तहत जमा किए गए बिलों में पाई गई विसंगतियों के कारण कुल 9,07,06,102 रुपए का जुर्माना लगाया गया और 7,20,92,230 रुपए की सफलतापूर्वक वसूली की गई। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਲਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 4880 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਔਰ 2,99 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ लगभग 9 करोड़ रुपए का जो जुर्माना वो लाया गया। जीएसटी कलेक्शन में साल दर साल इजाफे का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की उपलब्धियों को भी बताया, जिसमें 3 सालों में 62,733 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। वित्त मंत्री ने इसकी तुलना कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा 5 सालों में इकट्ठा किए गए 63,042 करोड़ रुपए से करते हुए कहा कि ये आंकड़े खुद बोलते हैं। 63,042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021-22 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 62,733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 62,733 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ यानी कि लगभग जे मैं गल करा कांग्रेस दे 5 साल और आम आदमी पार्टी दे 3 साल बराबर नेगे। विपक्षी दलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सरकार की प्रवर्तन गतिविधियों के खिलाफ कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल के निराधार दावों की आलोचना की है। उन्होंने दावा किया है कि इन दलों ने अतीत में ईमानदार करदाताओं की गाढ़ी कमाई को हड़पने के लिए कर चोरों के साथ मिली भगत की थी। साथ ही उन्होंने बताया कि अब जब सरकार ने कर चोरी पर शिकंजा कसा है तो ये दल बेताब होकर अपने सहयोगियों को जान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।